Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So this is your channel. And objective of this channel is to help you to get the job, to reach your destination and be employed. My dream is to help at least 1 lakh candidates to get the job, and already 28,000 plus channel subscribers are there. Those are working in banking, insurance and other sectors. Now, whenever someone shares his feelings or thoughts through comments or through WhatsApp message or through Telegram message, sir, I have cleared this, I have cleared this. Usually, I take a screenshot and post the screenshot on our community. The purpose is to encourage that person and also to encourage other persons. And sometimes these screenshots are not understood properly by some candidates. Now, yesterday, one of the subscriber told us that he has cleared this much number of exams and finally selected in around 8 selections. And he listed all those selections. Now, some of the candidates, those are unable to understand, started giving their comments. He has wasted 7 seats, he has done this thing, he has done this thing. I think you are not understanding the competition. When you apply for the examination, you are not applying only for one exam. No person can be so sure that he will only apply for one exam and will clear that exam. It is not possible. What you do, during a year, you apply for each and every exam that comes your way or you are thinking to join. So if in a year 6 major banking exams come, you will apply for that. If FCI exams comes, you will apply for that. If RBI exam comes, you will apply for that. If some other exam comes, you will apply for that. But what happens? When you start your preparation and you reach a certain level, sometime it happens you are able to crack every exam. It is not by choice. It is by your performance. So certain people are able to crack 7 exams. Certain people are able to crack 6 exams. Certain people are able to crack 5 exams. Certain people are able to crack 4 exams, 3 exams, 2 exams, and some are not able to crack any exam. So if somebody has cracked 8 exams, it is on account of reaching a level where he can crack any exam now. And you should get inspiration from such persons. He is not spoiling chance of any other person. When I appear in a competition, I am not sure that I will crack it. So definitely I will take a chance in every examination. And don't try to unnecessarily hit successful people. You will not get anything out of it. If you get inspiration, if you try to figure out how he could achieve it, you will gain something. But if you start saying he has spoiled the chance of others, he is not bothered about others, this is not true. Because when you are struggling for a job, you are not sure whether you will be selected for 1 job, 2 jobs, 5 jobs or 10 jobs. So everybody tries for every job. So what is bad in it if a person tried for 8 jobs and got successful in 8 jobs? We should rather appreciate him. We should rather encourage the people and ask him, tell our success story. And that's why there are so many success story videos are there on this channel. I am placing the playlist in the description. Watch these videos. Get the encouragement and learn. Please don't pass such comments which is not in good taste. If a person is sharing his success, we should compliment him. If a person is sharing his success, we should encourage him and draw lessons from him. This is my thinking, and that's why I put all these screenshots on our channel. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. ये चैनल क्यों बनाया गया? ये चैनल बनाया गया उन सभी लोगों की मदद करने के लिए जो जॉब लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. सारे सेशंस इस चैनल पे फ्री है. किसी भी सेशन के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कैसे तैयारी करनी है, कोई चार्जेस
आपसे नहीं लिए जाते। क्यों? क्योंकि मेरा एक ड्रीम है 1 लाख लोगों की मदद करना नौकरी पाने के लिए, और ईश्वर बहुत ही हमारे ऊपर दयालु है। हमारे चैनल के 28,000 से अधिक आज चैनल सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, अदर सेक्टर्स में कार्यरत हैं। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते जा रहे हैं और डेली शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। कल मैं एक मॉल घूमने गया, वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, अचानक एक कैंडिडेट आया, उसने कहा सर आप अनिल अग्रवाल हो? मैंने कहा हाँ। कहते सर आपके चैनल के थ्रू मैं तैयारी करता रहा और अब मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ। कितनी खुशी होती है। किसी भी आप पब्लिक अरीना में जाते हैं, कोई ना कोई आपको ऐसा कैंडिडेट मिल जाता है जो आपको पहचानता है और आपको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करता है। उस कैंडिडेट ने कहा सर मैं आपके साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाना चाहता हूँ। हमने फ़ोटो भी खींची, वो फ़ोटो मैं अभी आपको कम्युनिटी पे भी शेयर करूँगा। तो अच्छा लगता है क्योंकि एक हम ऐसा एफर्ट कर रहे हैं जिससे अधिकांश लोगों को बिना किसी कॉस्ट के आगे बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि ये चैनल है गाइडेंस का, राइट एडवाइस एट राइट टाइम। अब होता क्या है, अब जो भी आदमी अच्छी सक्सेस पाता है वो अपनी फीलिंग शेयर भी करता है। कुछ लोग कमेंट कॉलम में डालते हैं अपनी फीलिंग्स, कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं, कुछ लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर देते हैं, कुछ लोग कॉल करके भी बता देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो वो मैसेज आता है ज्यों का त्यों स्क्रीनशॉट खींच के अपनी कम्युनिटी में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? उससे उस व्यक्ति को भी इंकरेजमेंट मिलती है कि सर ने अपने चैनल पे मुझे ऑनर किया, सर ने अपने चैनल पे जहां लाखों लोग सब्सक्राइबर हैं वहां पर मेरी बात सबके सामने रखी। साथ ही साथ वो हमें लेसन देता है जो बाकी लोग हैं कि अगर ये अचीव कर सकता है तो हम भी अचीव कर सकते हैं। मगर कई बार क्या होता है कि जब हम कोई ऐसी सक्सेस डालते हैं कुछ लोग उसको समझ ही नहीं पाते। अब कल हमने एक स्क्रीनशॉट डाली जिसमें एक कैंडिडेट ने बताया कि मेरा 8 एग्ज़ाम में सफलता मैंने पाली और मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब कई लोग इसको समझे ही नहीं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, इसने 7 सीट ख़राब कर दी, इसको इतने एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत थी, और तरह तरह की बातें उसके अंदर आने लगी। अब वास्तविकता क्या है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। जब एक आदमी अनएम्प्लॉयड होता है तो वो क्या करता है? वो तो सारे एग्ज़ाम अप्लाई करता है ना, और रिज़ल्ट एक के बाद एक आते हैं। और कई बार क्या होता है, हमारी सारी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाती है, कई बार हमारी कुछ एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाती है, कुछ बार किसी में भी नहीं होती है। तो ये तो किसी को नहीं पता होता कि मेरे को नौकरी चाहिए, सिर्फ मैं एक ही एग्ज़ाम में बैठूंगा इस साल और वो ज़रूर क्रैक हो जाएगा। ये तो कोई भी नहीं कह सकता आज के ज़माने में। तो हम करते क्या हैं, 6 मेजर बैंकिंग एग्ज़ाम आते हैं, वो सारे अप्लाई करते हैं। फिर कोई बीच में RBI का एग्ज़ाम आ जाता है, वो भी अप्लाई कर देते हैं। कोई FCI का एग्ज़ाम आ जाता है, वो भी अप्लाई कर देते हैं। ESIC का एग्ज़ाम आ जाता है, वो भी अप्लाई कर देते हैं। और भी कोई एग्ज़ाम आ जाता है, वो भी अप्लाई कर देते हैं। SSC होता है, वो भी अप्लाई कर देते हैं। रेलवे आ जाएगा तो वो भी अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करते समय हर व्यक्ति हर उस पॉसिबल एग्ज़ाम को अप्लाई करता है जिसमें वो सक्सेस पाना चाहता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने 10 एग्ज़ाम अप्लाई किए, 15 एग्ज़ाम अप्लाई किए, इसमें बुराई क्या है? अब तैयारी करते करते उस व्यक्ति का यदि लेवल इस स्तर पे पहुंच गया कि उसके सारे एग्ज़ाम पास हो गए, तो हमें तो खुश होना चाहिए ना, हमें तो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसने ये जानकर तो सफलता नहीं पाई कि मैं 7 लोगों का नुकसान कर रहा हूँ। नुकसान वो किसी का नहीं कर रहा, वो तो अपनी सक्सेस के लिए मेहनत कर रहा है। कोई इसलिए एग्ज़ाम नहीं दे रहा कि दूसरे को जॉब ना मिले मुझे मिल जाए, ऐसा कोई नहीं करता है, आप भी नहीं करते हैं। तो ऐसा होता है जब हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं तो कई बार हमारे सारे क्रैक हो जाते हैं। 8 एग्ज़ाम में सक्सेस मिल जाती है, कई बार 7 में मिल जाती है, कई बार 6 में मिल जाती है, कई बार 5 में मिल जाती है, कई बार 4 में मिल जाती है, कई बार 3 में, कई बार 2 में, कई बार 1 में, कई बार एक भी एग्ज़ाम पास नहीं होता। तो ये तो एक प्रोसेस है। तो यदि हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां हर एग्ज़ाम क्रैक होने लगता है, ये तो एक अच्छी बात है। ऐसे कैंडिडेट से हमें पूछना चाहिए भाई आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया। और इसीलिए जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी हम सक्सेस स्टोरीज अगर जो लोग शेयर करते हैं हमारे साथ, वो हम इस चैनल पे डालते हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इन वीडियोस को देखिए, इनसे इंस्पिरेशन लें।
कई बार क्या होता है कि मैं भी कामयाब हो सकता हूँ मगर थोड़े से गैप से रह जाता हूँ। अगर मैं किसी से बात करता हूँ, मुझे रास्ता सूझ जाता है तो मैं भी पार हो जाता हूँ। तो हमें सफलता को एप्रिशिएट करना है, उसमें कमियां नहीं निकालनी है। कमियां निकालने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम दूसरे को एप्रिशिएट करेंगे, दूसरे की बातों से सीखेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरी सलाह यही है कि जो भी स्क्रीनशॉट डाले जा रहे हैं उसमें जो पॉजिटिविटी है उसको ग्रहण करिए। ऐसे ज़बरदस्ती मत किसी की भी आप बुराई में लग जाएं, क्योंकि बुराई तो सारी दुनिया कर रही है। आप डिफरेंट बनो, आप लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो। आप अपने को भी अप्रिशिएट करो, लोगों को भी अप्रिशिएट करो, तब आप आगे निकल पाओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।